It's not easy. नमस्ते, मेरा नाम है जेसिका और मैं नाइजीरिया में रहती हूँ। आज बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे मेरी मदर इन लॉ से। आप लोग सब ऑलरेडी इन्हें जानते हो, बट टुडे वी आर गोइंग टू डू अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। दिस इज माय मदर इन लॉ इन नाइजीरिया एंड चलो कुछ सवाल पूछते हैं। मम्मी, let me ask you a few things. What do you think about India and Indians? India people, they are human being like me. Okay. India is a country. Okay. You understand? I thank God my son been there. Live India for years. But one thing in India, they are tribalism. They used to do tribalism. Okay. It's nothing again. Do you know which religion is most in India? Like in Nigeria is so much Christianity and some I of them never are been Muslim. there before. Okay, but you heard about which religion is most in India? I never hear anything. I never been there. I never. But for my own thinking, I would say it's Nigeria. No. It's Hinduism. Hinduism is most in India. India is basically more of Hindus. To show you that I've never been there before. Yes. Okay, let's move on to the next question. अब मैं पूछने वाली हूँ कि इनका रिएक्शन कैसा था जब इनको पता चला कि इनके बेटे मुझसे शादी करना चाहते हैं। मम्मी, how was your reaction when daddy said he wants to marry an Indian girl? My answer. So far as two of us agree on ourselves. Okay. It's love matters. Okay. So it doesn't matter which country, come and marry. Is We it? are one. Okay, what about other Nigerians? Do everybody like they are so open to accept other It culture? depends. For me, I like Dan Emmanuel being UK now. Okay. If you see anybody there, you can marry. So far as na in mind and na in choice. Okay. So no objection. No objection. Anything my son like, I like it. Wow. Anything that will give my son joy, it will give me joy. वाह, ये कह रहे हैं कि जो मेरे बेटे का पसंद है वो मेरा पसंद है। अगर मेरा बेटा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। Yes, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। You don't have any problem. At all. Wow. Okay, so I'll say, what is the difference between Nigerian daughter-in-law and Indian daughter-in-law? क्या अंतर है एक नाइजीरियन बहू में और एक इंडियन बहू में? Everything depends character. Okay, only character, nothing else. Cooking style, dressing style, all these things. All those things depend on character. Okay, if the character is good, Yes. everything is good. Everything is good. Okay. Would you like to visit India or try Indian food? Yes. Okay. Yes. And go and go to Yes. healthcare center in India. Yes. Okay, great. Okay, last question. Are you happy with me? What changes should I make? By how? No, are you happy with me? Your mind will tell you that I'm happy with you. That I not receive you. Yes, you Yeah? do. Yes. That I not take you as I take myself. Yes. We are one. Yes. We are one woman being, one body, one flesh, waiting again, nothing again. You are mine, you are mine. Nothing. We are one. Wow. I love you. Wow. I like you. It's not easy. From all the way from that place to Nigeria, it's not easy. I love you. Thank you. फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, जो मम्मी ने बोला है ना इंग्लिश में, शायद उनका इंग्लिश में अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे नॉर्मल इंग्लिश तो बोलते ही है, साथ में ब्रोकन इंग्लिश या जिसको बोलते हैं पिजन इंग्लिश वो भी बोलते हैं। मतलब तो उनको उतने अच्छे से तो नहीं आता है, मगर मैं समझती हूँ जो भी ये बोलते हैं और मम्मी भी सब समझती है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड। आई होप ज़्यादा सवालों का नहीं तो कम से कम कुछ सवालों का आंसर तो आप लोगों को मिल ही गया है। दोस्तों, मैंने सोचा मैं अपना रिव्यू भी दे दूँ आप लोगों को, इसीलिए मैं ये वीडियो अकेले बना रही हूँ
कि चलो मैं अगर कोई रहेगा ना मेरे साथ तो ऐसा लगता है कि कॉन्शियस होकर मैं कुछ सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं बोल पाऊँ। तो अभी जब मैं अकेली हूँ तो मैं ट्रांसपेरेंट होकर आप लोगों से बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसा कैसा फीलिंग होता है कि आपको पता ही है मेरी सास दूसरे देश की है, मैं दूसरे देश की हूँ, तो ऐसा बहुत अलग ही फीलिंग है। तो फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो उससे पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, वीडियो कॉल में देखी हूँ मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे। अपनी सास से मैं वीडियो कॉल में ही बात करी हूँ उस वक्त। तो हाँ, तब तो सब कुछ अच्छा था, कैसी हो ब्ला ब्ला, कुछ ज़्यादा सवाल जवाब मुझसे नहीं पूछते थे एंड बहुत अच्छे से प्यार करते थे, सब कुछ ही बोलते थे। जब हम यहाँ पे आए तो मुझे बहुत अच्छे से ही सबने वेलकम किया है कि हाँ आपका स्वागत है, ये आपका ही घर है, आपको संभालना है सब कुछ। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। पहले पहले तो थोड़ा सा डर लगता है ना कि दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में सब कुछ उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, उनका हैबिट पूरा अलग है। जैसे हमारे देश में हम जब जाते हैं अपने सास से मिलते हैं तो फिर पैर छूते हैं, ये सब। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बस आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे ग्रीट कर दो, उतना ही काफ़ी है, पैर वैर छूने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम जब यहाँ आए तो कुछ दिन तो सब कुछ देखने में लग गया कि यहाँ का कैसा खाना पीना है, माहौल कैसा है। ऐसा नहीं है कि मैंने नाइजीरियन फूड इंडिया में दिल्ली में नहीं बनाया है। दिल्ली में नाइजीरियन मार्केट है उत्तम नगर में, वहाँ से लेकर मुझे मालूम तो है, थोड़ा बहुत ही जानती हूँ जो यूट्यूब में देखा है और थोड़े बहुत मेरे हस्बैंड ने सिखाया है। मेरे हस्बैंड को भी कुछ बनाना आता ही नहीं, तो एक दो जन जो मुझे सिखा देते और मैं यूट्यूब में देख लेती हूँ, वैसे करके मैंने कुछ कुछ जो है खाना बनाया है। पर जो प्रॉपर खाना होता है ना, वो यहाँ आके ही मैंने सीखा है, जो बहुत डिफ़िकल्ट तो है ही, बहुत अलग भी है। और हाँ, मैं ठीक से नहीं खा पाती हूँ, ये बात तो सही है, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि चलो मैं पपीता की सब्ज़ी बना लूँ या फिर बंद गोभी या कुछ कैरेट वैरेट अपना कुछ मिला मिला के मैं बना के खा लेती हूँ। तो जब आती है सास के बारे में, तो पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी, सब कुछ है, अभी भी बात करती है, मगर अभी क्या है कि कोई कोई ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें वो मुझसे गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। जो आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा जब मैं बाहर गई थी, और मैं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो, मैं अकेले कहीं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि एक तो सेफ्टी का भी उतना श्योरिटी नहीं होता है, कहीं कुछ हो गया। और दूसरी बात, और हम जहाँ रहते हैं ना तो ये बहुत ही अंदर है, तो यहाँ से मेन रोड तक का रास्ता मैं अभी भी नहीं जानती हूँ, जो कम से कम मुझे गाड़ी से तो 20 से आधा घंटा ऐसे लग जाता है। तो आप समझ जाओ कि हम अंदर रहते हैं, तो अब रास्ता बहुत सांप की तरह पूरा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं जब भी जाती हूँ तो कोई ना कोई मेरे साथ ज़रूर जाता है। नॉर्मली अगर मेरे हस्बैंड नहीं है तो देवर वगैरह कोई ना कोई जाता है। तो जब जैसे मैं बाहर गई और उनके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, तो कभी कभी वो मुझसे नाराज़ हो जाती है। मुझे पता है उनको भी बाहर जाने का मन है, पर ये डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है ना। कोई कोई ऐसी चीज़ें होती है जो उनके खुद के बेटे को बोलना चाहिए, मुझे नहीं। तो ज़्यादातर हम उनको लेकर जाते हैं, जैसे चर्च हुआ, यहाँ वहाँ हुआ, मगर कोई कोई चीज़ों में नहीं लेकर जाते, तो उस वक्त वो मुझसे नाराज़ हो जाती है। बाकी लोग तो सही रहते हैं, मगर ज़्यादातर मेरी सास ही नाराज़ हो जाती है। दूसरी बात यह है कि देखो, डिफरेंस तो पड़ती ही है, चाहे आप अगर स्टेट भी डिफरेंस होता है, दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट की लड़की आ जाए, बहू आ जाए, तब भी अंतर है। मैं तो दूसरे कंट्री से हूँ, तो आप सोचिए कितना अंतर है, जिससे मुझे भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं भी झुक जाती हूँ कि मैं छोटी हूँ, चलो मैं मान जाती हूँ बात, कोई बात नहीं। अगर वो मुझसे गुस्सा है तो मैं चुप हो जाती हूँ। ऐसे ही छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, जिसमें मैंने आज तक कभी उल्टा जवाब या उनको कुछ नहीं बोला है, और ना ही कभी बोलूँगी, क्योंकि ऐसी मेरी आदत है भी नहीं कि मैं किसी को कुछ बोलूँ। मैं अपने दोस्तों को ही ठीक से कुछ नहीं जवाब दे पाती हूँ, तो अपने बड़ों को कैसे दूँ। खाने पीने में बहुत कुछ मैं सीख रही हूँ, अभी भी यही कहती हूँ कि मैं उतना अच्छा तो मुझे नहीं आता है, बट हाँ मैनेजेबल आता है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैंने कभी सुना ही नहीं है, जब मैं दिल्ली में भी थी, इंडिया में थी। जब मैं यहाँ आई, जैसे ऑफो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ आके ही मैं सीखी हूँ।
तो मुझे डांट तो पड़ती है, जी हाँ, ये मैं बोलूँगी, मुझे डांट तो पड़ती है, मगर मुझे ऐसे किसी ने मेरे ऊपर आज तक हाथ नहीं उठाया है, किसी ने कुछ वायलेंस नहीं किया है। रही बात कोई मेरा मजाक उड़ाए कि मैं वहाँ से आई हूँ, वैसे मुझे ईबो लैंग्वेज भी समझ में आता है। यहाँ दो होता है, एक तो पिजन इंग्लिश है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है उसके बारे में कि यहाँ सारे लोग पिजन इंग्लिश में ही बात करते हैं, नॉर्मल इंग्लिश नहीं, पिजन इंग्लिश। और दूसरा है कम्युनिटी लैंग्वेज, वो है ईबो लैंग्वेज। तो पिजन इंग्लिश तो मैं पूरा समझती हूँ और बोल भी लेती हूँ, तो ईबो लैंग्वेज जो है वो भी मैं थोड़ा मोड़ा समझ ही जाती हूँ। तो यदि आप मेरे सामने कुछ बोल रहे हो या मेरी बुराई कर रहे हो या मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे समझ में आ जाता है कि आप ऐसे कर रहे हो। तो ये चीज़ मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है घर में, बिल्कुल भी नो रेसिज्म, सब मुझे अपनाते हैं। बस हाँ, कभी कभी बोलते तो है ही कि चलो मैं ओइबो हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बाहर से आई हूँ। तो ये तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी था कि लोग ऐसे बोलेंगे ही, ये तो कॉमन सी चीज़ है कि मुझे यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है। जो थोड़ा बहुत पता था और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज ऑफ कल्चर है, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने अपने आँखों से देखे हैं। तो ऑब्वियसली एक शॉक की तरह तो लगता ही है, बहुत कुछ मैं नोटिस कर रही हूँ, समथिंग गुड समथिंग बैड, जैसे हर एक कल्चर में होता है। इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि चलो मैं ऑनलाइन आके मैं आप लोगों को भी ये सब बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इंडिया से बाहर नहीं गए, मैं खुद नहीं गई हूँ, मैं दूसरों के बारे में क्या बोलूँ। मेरे फैमिली में मैं आई थिंक पहली ही हूँ जो इंडिया से बाहर आई हूँ, रहती हूँ यहाँ पे। तो ये उनके लिए भी, मेरे लिए तो है ही नया एक्सपीरियंस, बट आप लोगों के लिए भी जब आप सुनते हो तो आई एम श्योर आप लोगों के लिए एक नया कुछ होगा, है ना, है कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपने घर में, जब मैं अपनी मम्मी के घर में थी, आप विश्वास करो मैं रानी बन के रहती थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन है जिसको खाना बनाना बहुत पसंद है, एंड वो पूरी घरेलू लड़की है, बहुत ही अच्छी है। मतलब हम लोग उसको बोलते हैं वो दूसरी अम्मा है, जो फर्स्ट बेटी होती है ना वो दूसरी अम्मा ही हो जाती है। तो वो वैसी है, वैसे ही पूरा घर का सब कुछ कर देती है। उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई आता है। तो मेरा भाई को भी खाना बनाने का बहुत शौक है, मगर वो कॉन्टिनेंटल ये सब क्यूजीन ट्राई करता है। तो घर में जब ये लोग बनाते हैं ना तो मेरा काम बस खाना है। तो बन तो रहा है, मेरा बस टेस्टर है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट, ऐसा लाइफ मैंने जिया है। बट शादी के बाद ये उल्टा हो गया है मेरा लाइफ, जिसके लिए मेरे घर वाले भी बहुत हंसते हैं कभी कभी मेरे भाई बहन की, देखो तुम कैसे थी और अभी देखो कैसे हो। तो यही है मेरे कुछ व्यूज़ मेरे घर वालों और स्पेशली मदर इन लॉ के बारे में। तो आई होप अभी सब क्लियर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। हम लोग 20K फॉलोअर्स हो गए, वी आर अ फैमिली ऑफ 20,000। मतलब कैन यू इमेजिन? आई कांट इमेजिन। ऑल थैंक्स टू गॉड एंड ऑल थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आयशा मीरन, एंड आप लोग सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हो ना, I'll tell you, I'll be very honest, मुझे कमेंट्स पढ़ के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर। अगर मैं कुछ बोलूँ तो शायद अच्छे से नहीं आएगा, लोग क्या समझेंगे, वो लोग क्या समझेंगे वाला, यू अंडरस्टैंड ना कैसे होता है। बट आफ्टर रीडिंग योर कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज I'll मेक अ वीडियो, आज I'll डू अ डेली व्लॉग, ऐसे करके मैं आई गेट वेरी मोटिवेटेड। सो थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग मी, एंड हमें अपनी फैमिली को और भी ग्रो करना है। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।